hello. Hello, good evening. Sorry first of all for the delay in starting and thanks for coming. विवेक जी, आप फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहे हैं गए 20 सालों से जी। बतौर प्रोड्यूसर। तो इतने सालों के बाद इतना समय कैसे लगा? सबसे पहले ये बताइए, अपनी खुद की पिक्चर बनाने के लिए। Direction is not an easy job. Production is also not an easy job. When you combine both, it takes a lot of time and experience. Yeah. So before I got into direction, I wanted to establish myself as a producer. So by the time I did that and learned the ropes of direction, it took me that much time. कहते हैं कि जब भी कोई एक राइटर अपनी पहली लिखी हुई चीज को दुनिया के आगे प्रेजेंट करता है, वो कहीं ना कहीं ऑटोबायोग्राफिकल होती है, खुद की कहानी होती है। तो आपकी जिंदगी से कितना मिलता है ये किरदार? आपके कॉलेज में भी थी एक ऐसी लड़की जो आपको भाव नहीं देती थी? Fortunately, I'm not the only writer for this film. There's Chintan Gandhi also. Maybe this part is for him, not for me. तो आपसे क्या मिलता जुलता है पार्ट? Not the reality stuff. Alright, now we're gonna move on and meet your music team. लेकिन उससे पहले मैं कोरियोग्राफर के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि डांस इज ऑल्सो सच ए ह्यूज पार्ट ऑफ रिदम। जी। आपके कोरियोग्राफर के बारे में हमें बताइए। सुना है कोई शख्स है जो माइकल जैक्सन, रिकी मार्टिन के साथ काम कर चुके हैं? प्लीज मीडिया को बताएं। Yes, his name is Glenn Douglas Packard. He lives in the States and he has worked with all the likes of the names that you mentioned. Yeah. So he was very keen to come into Bollywood. I was introduced to him through a heroine Rinil, and she was training with him. So I took the opportunity to ask her to introduce him to me. And once we got talking and we had similar ideas to share, it was just one flow of things. That's it. Fantastic. But आज हम काफी सारे आपके गाने देखने वाले हैं रिदम के। जी। So इससे पहले कि हम गाने प्ले करना शुरू करें और धीरे धीरे आपकी म्यूजिक टीम से मिले, कुछ आप जो हमें बता सकते हैं रिदम द एल्बम के बारे में? Rhythm the album has taken a lot of time to come together and a lot of hard work. We have some fantastic people who have contributed for this album. We have Salman Ahmed, who, as you know, has done a whole lot of songs which have been international hits, including Sayoni. So I wanted to have some raw music in the film because our film is basically based in an international university. So I thought that there was a huge gap for us to hear this kind of music. We were hearing a lot of electronic stuff and things like that, which I didn't want to get into. So I thought that Salman was a reference for me. And I thought, why not take the chance and ask the man himself if he would be interested in giving us music. So again, when I met him, he was gracious enough and keen enough to join hands with me and he's given us 2 spectacular songs for the film. We'll watch them later. We will watch those songs later. Yeah, I'm sure you'll love them. Apart from him, of course, Sunidhi, who's been a superstar in the right for a long time, was gracious enough to come and lend her voice to our songs. So she's been a very, very big help to me in my becoming a director and giving a good music. Hi Sunidhi, good evening. Good evening, everyone. Hello, hi. How excited are you to watch that on the big screen? Oh, it's amazing. I just totally had so much fun watching it. Really. Now, I love the video. I love the second video very much. Congratulations. सुनिधि चौहान, आप एक ऐसी इंडस्ट्री की हिस्सा है जो नए टैलेंट की खोज में रही हैं। हमने आपको देखा है टेलीविजन पे भी नए टैलेंट की खोज करते हुए। व्हाट इज इट लाइक जब आप अपनी आवाज देती हैं एक नए चेहरे को, कंसिडरिंग आपने फिल्म इंडस्ट्री में हर एक एक्ट्रेस के लिए गाना गाया है? व्हाट इज दैट लाइक? बहुत अच्छा लगता है। नई आवाज़ नई लगती है, नया चेहरा होता है, फ्रेशनेस होती है उसमें, तो बहुत कुछ नयापन होता है, देखने को मिलता है, अच्छा लगता है। एंड आई मस्ट से कि जो हमारी एक्ट्रेस हैं उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है गाने में, सो इट डजंट लुक लाइक इट्स न्यू, यू नो, वो बहुत सारे गाने ऐसे कर चुकी हैं, ऐसा लगता है देख के। सो आई वांट टू कंग्रेचुलेट हर ऑन दैट एंड इट्स ब्यूटीफुल। आई लव वाचिंग बोथ द वीडियोस। नाउ रिदम नाम ही एक ऐसा है जो आपकी जिंदगी का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो रिदम इस फिल्म पे गाने करना कैसा एक्सपीरियंस रहा? विवेक के साथ काम करना कैसा एक्सपीरियंस रहा? विवेक के साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक तो ये बात है कि ही इज़ सो कंफर्टेबल टू वर्क विद, ही लेट्स यू बी, और मुझे वो एटमॉस्फेयर याद है जब हम ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। सलमान हिमसेल्फ, आई मीन,
ऐसा लगा ही नहीं कि कोई काम हो रहा है. There was no stress. I did 2 songs for the film, and they just happened, you know. It was so easy. It's such a beautiful atmosphere in the studios, and we had fun. We chatted. We ate some good food. I remember, and we also recorded these songs. So I think जब आप बहुत relax होकर बिना टेंशन के गाने करते हैं तो उसका एक चार्म अलग होता है, वो सुनाई देता है आपको गाने में. So I think लोगों को अच्छा लगेगा. I'm hoping. विवेक से यही सवाल आपसे, सुनिधि चौहान को जब आप अपनी मूवी का हिस्सा बनाते हैं, वो एक तो सबसे पहले ख्याल कैसा है कि मुझे सुनिधि चौहान की आवाज चाहिए अपनी हीरोइन के लिए? जी. Actually, I think I waited a month for Sunidhi, but I was refused. traveling. I didn't mean to wake you late. No. But I was sure that I'm going to record the song only with her and nobody else. So I think I was totally justified, and you guys will agree with me that nobody else could have done justice to these songs. Thank you so much. मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ और मुंबई में आके just out of my mind. Thank you so much for having me here. देखिए, आपका जो म्यूजिक था जुनून बैंड के साथ, मैं पर्सनली उस जनरेशन से बिलोंग करती हूँ. हमारे लिए पहली इंट्रोडक्शन थी वो कि एक अच्छा रॉक एक्ट क्या होता है, ये होता है. जुनून की कैसेट मुझे याद है, मैंने खरीद के 2 बार खरीदी थी, क्योंकि पहली वाली मैंने इतनी घिस दी थी कि वो चलनी बंद हो गई थी. बट उस टाइम पे योर म्यूजिक मेड इंडिया पाकिस्तान टाइज स्ट्रॉन्गर कल्चरली. जब आप वो म्यूजिक बना रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, उस टाइम पे आपने सोचा था कि जुनून को, आपके संगीत को ऐसा मकाम देना है कि इंडिया पाकिस्तान के फैंस एक साथ आएंगे? एक्चुअली जी, मैं आपको बात बताऊं कि मुझे तो सोच भी नहीं सकता था मैं कि मैं मुंबई में आके प्रेजेंट करूंगा. पहली दफ़ा जब आपने मेंशन किया ना, पहली दफ़ा जब आए तो हमने सयोनी एक फिल्म अवार्ड सेरेमनी पे आके परफॉर्म किया. और वो जो सारे यहाँ के स्टार्स थे, बॉलीवुड के स्टार्स, हम लोग तो टीवी पे या फिल्म में उनको देखते थे. तो उनमें से जिस तरह काजोल और शाहरुख खान और सलमान, वो मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि वो ऑडियंस में बैठे होंगे जब हम वो परफॉर्म कर रहे थे. एक तो वो मुझे बड़ा शॉक लगा फर्स्ट टाइम. सेकंड डे जब हम मुंबई में जा रहे थे तो हर जगह सयोनी चल रहा था. तो आपने कहा कि आपकी कैसेट घिस गई है. मैं समझता हूँ कि वो गाना एक आइडेंटिटी बन गया है, यू नो. तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोग सबका, जो इंडियन फैंस हैं, जुनूनीज, उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. और मेरे दोस्त विवेक कुमार का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा कि ये यारों के अंदर जो रिदम के अंदर जो यारो सिंगल है कि वो आप कंपोज करें. और द ब्यूटिफुल वॉइस ऑफ सुनिधि चौहान. आई एम सो ग्रेटफुल टू बी हियर. तो विवेक से आपकी मुलाकात कैसे हुई? बॉलीवुड में ये रिदम कैसे आपकी जिंदगी में आई? असल में जी, मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, तो ये आए, हमने कार्नेगी हॉल के सामने एक रेस्टोरेंट था, वहाँ वी हैड डिनर. तो उन्होंने जब ये कहानी बताई तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि एक यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और जो लीड सिंगर हैं रिनेल, वो एक सॉन्ग कंपोज करना चाह रही हैं. तो मुझे भी अपने कॉलेज के दिन याद आए कि मैं भी जब कॉलेज में था, मुझे यही था कि एक ऐसा गाना कंपोज कर दो कि लोग पागल हो जाएं, यू नो. सो व्हेन ही टोल्ड मी दिस स्टोरी, ही सेड आई आल्सो लाइक फॉर यू टू बी द सूफी रॉक स्टार इन द फिल्म. Wasn't that a wise idea? So I'm really thankful for Vicky for. आपने एक्टिंग भी की है रिदम में. रोल आप कर क्या रहे हैं ये बताइए. मीडिया रियली वांट्स टू नो कि सलमान अहमद रिदम में दिखाई दे रहे हैं, क्यों, क्या कर रहे हैं मूवी में? ये मैं स्पॉइलर नहीं बनना चाहता, थोड़ा सा बता दो. तो लेकिन ये है कि इसमें विंग्स और एंजल्स की बात आएगी. और उसमें ये है कि मैं एक एंजेलिक फिगर हूँ रिनल के लिए इसके अंदर, फिल्म के अंदर. आगे नहीं बताऊंगा. नहीं, आगे नहीं बता सकते, थोड़ा सा नहीं. ओके, एनीवे, हमने जुनून की बात की, हम जुनून का गाना गवाएंगे आपसे, लेकिन उससे पहले, बिकॉज द अमेजिंग, द सो टैलेंटेड सुनिधि चौहान इज हियर, वुड यू लाइक टू कॉल हर ऑन स्टेज? एक छोटी सी वर्जन हो जाए आपके गाने की. I'd love to. Can we hear it for Sunidhi Chauhan? Sunidhi, would you join us up here, please? So, हमारी ऑडियंस में जो लोग सब बैठे हैं उनको मैं ये कहूँगा कि ये एक मौका ये भी है कि आप देखें कि सुनिधि जो शी इज़ ए diva, an icon in India, even in Pakistan people love her
look up to her, and I feel very proud that I'm in India, standing next to such a legend from India. और मैं ये दरख्वास्त करूँगा हमारे जो दोनों मुल्कों के लोग हैं और जो गवर्नमेंट्स हैं कि ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट अलाउ करें. इससे क्या होगा कि लोगों की कुर्बतें बढ़ती हैं, प्यार बढ़ता है, और आपको गाना भी सुनाएंगे. जी बिल्कुल. आप पहले. बहुत पहले हमने ये रिकॉर्ड किया था, तो माफ कीजिएगा अगर लिरिक्स में थोड़ी गड़बड़ी हो जाए. यारो 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 यारो, ये दिल जो मेरा पागल नहीं है, ये तो किसी की दिल की दुआ है. यारो यारो, your round of applause for Sunidhi Chauhan, ladies and gentlemen. I think everybody wants to take a few photos before. All right. Thank you so much, Sunidhi. I would request you to take your seat again because Salman is going to sing one more song for us. Salman is going to sing one more song for us. हमने जुनून की इतनी सारी बातें कर ली हैं. यहाँ पर इतनी सारी लड़कियां वो जो उधर खड़ी हैं वो बार-बार मुझे इशारा कर रही हैं. Can we hear something from Junoon by Salman Ahmed live for our media, please? जरूर. चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं, सयोनी. Let me just do this again. चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं, सयोनी. Sayoni. Yeah, thank you so much. How exciting to see you perform live for us. I request you to take your seat back and I'll call you back later for photo ops. Good evening. Hi. Please, if you want to say something. Thank you everyone for coming out here. Really enjoying all of this. Now, please tell us, when did you become a part of Rhythm and what is it that you're playing? What's your character in the film? So I was on board from the very inception actually, and I play Avantika. She's a final year college student in an international university in Poland. So Avantika's character, she idolizes Salman and wants to follow in his footsteps of becoming a true rock star. So her main goal is to write this iconic song for the college music and dance festival. But in the interim, she goes through this massive heartbreak, not heart attack, which completely shatters her trust in love. And she has this wall around her. So Rhythm actually follows her journey as a performer and how she regains her trust in love. So it's about that. How exciting. That sounds like so much fun. Yeah, it was a ton of fun. Now, I'm going to refer to my notes for this because I literally have to read this out. Now, Rinil, ladies and gentlemen, is trained in Kathak, jazz, hip-hop, belly and modern dance. She studied acting from 2 different schools and also trained in psychobiology. So there's one thing that I haven't done. Yeah, the focus has always been and will always be to be a performing artist. And my academic background, my training in the arts, all of this has actually helped me, to understand the process of our emotions,
how we interrelate with each other, how our rhythm interrelates with each other. So yeah, I'm on the lookout for far more interesting projects, and the adventures should continue. Well, good luck to you. May you go from strength to Thank strength. you. Vivek, before we open for photos by our media friends, some last words that you might want to say about Rhythm. I hope you guys love the songs of the film. I'm sure you like the film as well, because everybody has worked very hard for the film, and I sincerely pray that the film does well for everybody. Thanks a lot for coming here anyway. Thank you, thank you. Now can we have Miss Sunidhi Chauhan and Mr. Salman back up on stage, please, for some last photos? Ladies and gentlemen, the floor is open. आपको जितनी तस्वीरें खींचनी है, आप दिल खोल के खींचिए. Thank you. जी बहुत खुशी इसलिए है कि आपको जिस तरह मैंने बताया कि मेरा ताल्लुक इंडिया से शुरू हुआ सयोनी से, और मेरी जो वालदा है, मेरी अम्मी, उनका ताल्लुक पटियाला से है। तो जब मैं पहली दफ़ा इंडिया आया, जब इतना प्यार मिला सयोनी से, तो उसी प्यार में जो विकी कुमार जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने आके कहा कि मैं फिल्म बना रहा हूँ जिसके अंदर एक रॉक बैंड है यूनिवर्सिटी में, और एक लड़की है जो कॉलेज में है, जो जुनून की फ़ैन है, और मैं चाहूँगा कि आप इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर भी बने और इसके अंदर अपना रोल भी प्ले करें। तो न्यूयॉर्क में हमारी मुलाकात हुई और मैंने कहा कि मैं बिल्कुल करूँगा। बट सलमान सर, सेम टाइम इतना टाइम जुनून के बाद लोग काफ़ी टाइम तो वेट कर कब आएंगे सलमान, ये जो गैप था क्यों? बिकॉज जुनून के लिए कि कोई और कुछ काम कर रहा है? जी, वो अंग्रेजी में एक कहावत है कि एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। तो मैं तो देर बाद इसलिए आता हूँ कि लोग फिर भी याद रखते हैं और प्यार करते हैं। और अब मेरा दिल ज़्यादा है कि जब मैंने सुनिधि चौहान के साथ मिलके ये जो थीम सॉन्ग है यारो रिकॉर्ड किया, तो मुझे महसूस हुआ कि मैं फिल्मों के लिए भी मौसीकी देना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। सलमान से मिले आप? जी बिल्कुल मिला हूँ। कैसा अभी मिले, कब मिले? नहीं, उनसे मैं ओवर द इयर्स मिला हूँ। इस दफ़ा तो मैं शायद मैं क्योंकि हूँ 19 तारीख तक, तो शायद मुलाकात हो भी सलमान खान के साथ। सलमान, हम लोग बार बार इंडियन पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट है, कलाकार हैं, उनके बारे में बात करते रहते हैं कि फिर भी पॉलिटिकल चीज़ें आती रहती हैं और कहीं ना कहीं मन में खटास आ जाती है। आप इससे वो है सहमत है या क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, क्योंकि मैं UN गुडविल एम्बेसडर भी हूँ, आपके इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए मैं दरख्वास्त करूँगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को कि आर्टिस्ट जो है वो लोगों के दरमियान प्यार बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं। आर्टिस्ट दोनों गवर्नमेंट्स को, जो भी आर्टिस्ट हैं, इंडियन आर्टिस्ट को अगर पाकिस्तान जाना है उनको वीज़े मिलने चाहिए, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को अगर इंडिया आना है तो उनको वीज़े मिलने चाहिए, क्योंकि ये एक दिल का डायलॉग होता है। आपने देखा कि मैं सुनिधि के साथ जब स्टेज पे हूँ तो ये नहीं लगता कि एक इंडिया से है एक पाकिस्तान से है, लगता है कि एक यूनिटी का पैगाम हम लोग दे रहे हैं। और जो हमारा थीम सॉन्ग भी है वो यारो है। तो हमारी दोनों स्टेट्स को मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि अब वो वक्त आ गया, आगे सोचें। कैसा एक्सपीरियंस रहा रिदम के साथ काम करके? जी, रिदम में काम करके बहुत मज़ा आया। म्यूज़िकल फिल्म है, बहुत म्यूज़िक ही इसकी स्ट्रेंथ है इस फिल्म की, तो बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट मेरे जो दोनों गाने हैं, डू यू वांना डांस विद मी एंड यारो, बोथ आर वेरी हाई एनर्जी सॉन्ग्स। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था स्टूडियो में, तो मज़े में काम हुआ। और ऐसा जब होता है तो इट साउंड्स रियली नाइस, रिलैक्स्ड। तो मुझे खुशी है कि आज मैं यहाँ पर हूँ और सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है। सो गाना गाते हैं तो पहले स्टोरी को सुनती हुई और अब सिर्फ गानों से एज ए सिंगर मुझे वही काफ़ी होता है कि मैं जब लिरिक्स पढ़ लेती हूँ उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि क्या गाने की डिमांड है। आई थिंक लिरिक्स सब कुछ करते हैं। बाकी हाँ, जो कुछ डायरेक्टर्स अपना थोड़ा सा विस्तार में बताते हैं कैसा उन्हें एक्सप्लेन करना है, तो वो अलग बात है। बस ये कहूँगी कि म्यूज़िक हैज़ नो बाउंड्रीज, और ये भी बात आपने कई लोगों से सुनी होगी
म्यूज़िक बल्कि एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप कहीं से भी हो तो आपको बहुत करीब ले आता है। आपको मज़ा आता है एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानने में, एक दूसरे के म्यूज़िक के बारे में जानने में, और फिर आप मिलकर कुछ काम करते हैं तो वो अलग होता है, डेफिनेटली अलग होता है, स्पेशल होता है। उसमें एक अलग तरीके का सुकून होता है या एनर्जी होती है। आई बिलीव इन दैट। एंड मेरा जो एक्सपीरियंस था सलमान के साथ काम करके, इज़ अ वेरी नाइस वार्म पर्सन, और हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम दो अलग देशों, बल्कि इंडिया पाकिस्तान अलग है ही नहीं। तो वो वहाँ से आपको कभी ऐसा हुआ कि आप उस बार गई हो और आपने परफॉर्म किया हो कुछ? बहुत सालों पहले मैं गई थी, मैंने किया था एक शो में परफॉर्म, लेकिन उसके बाद फिर मौका नहीं मिला। देखिए गाने तो वही सुर हैं सब, हर बार एक मूड अलग होता है, एनर्जी अलग होती है, और मेरे लिए मेरी जहाँ तक बात है, मैं हर गाने को अपना पहला गाना समझ के गाती हूँ, तो मुझे वैसा ही लगा, नया लगा, और मैंने अपना 100% दिया। गाना वैसे ही कुछ चेंजेस होते हैं उसके have been seeing you like coming the films also, but you could have done the major song. If you ask me to, पर आई गेस इसमें नए चेहरे हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरी आवाज़ उनके ऊपर है, आई थिंक वही काफ़ी है। आगे और भी काम तो चलता ही रहता है इंडस्ट्री में। काफी दिनों से आप दूर थी लोगों की नजरों में, टीवी शो किया आपने, तो यही सब आप लुका छुपी में पीछे कर रही थी आप? जी, छुपके तो मैं कुछ भी नहीं करती, बट क्या है कि जब तक कुछ रिलीज़ नहीं होता है तो आप लोगों को पता नहीं पड़ेगा और दुनिया को पता नहीं पड़ता, तो काम तो चलता ही रहता है। बट क्योंकि इतनी सारी फिल्में बनती हैं, इतने सारे गाने रिकॉर्ड होते हैं, हर किसी का हम हिसाब नहीं रखते। मेरी जहाँ तक बात है, मेरा काम गाना है, मुझे कोई गाना अच्छा लगता है मैं उसे गा देती हूँ, और जब वो आता है लोगों को अच्छा लगता है तो वो पता पड़ ही जाता है। जैसा गाना आपको ऑफर होता है वैसे ही गा देते हैं, आपकी अपनी इम्प्रोवाइजेशन? मेरी पूरी इम्प्रोवाइजेशन होती है, क्योंकि जैसा दिया जाता है वैसा मैं नहीं गा सकती, और ना ही गाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मुझे अप्रोच करता है तो वो इसीलिए करता है कि मैं शायद उसमें कुछ स्पेशल करूँ। मैम जैसे जो अभी प्रीवियस फिल्में आई और आपका कोई फेवरेट गाना रहा हो जो आपने ना गाया हुआ, यू विश कि आपने वो गाया हो, तो कुछ शेयर करना चाहिए ऐसा गाना? हाईवे फिल्म का एक गाना है सुहा साहब, जो काश मैंने गाया होता। प्लीज़ गा दीजिए, गा दूँ एक लाइन। संगी साथी हम सोने हार होना हो, सुहासा अम्मा का हो, सुहासा अम्मा का। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपके गाने का सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है? आपकी मतलब जो आपको बताता हूँ कि मेरी बहन मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है, और बहुत मुश्किल से उससे तारीफ सुनने को मिलता है। मैं प्लीड करती हूँ, ये गाना मैं बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उसको सुनाती हूँ, ये गाना सुना, नया गाना, फितूर का गाना है, अच्छा वेरी नाइस, इतना रिएक्शन मिलता है। But when she really likes something that I've sung, then she would go all out and type me a message or maybe call me. So I'm glad that I have a critic at home. सबसे वर्स्ट कमेंट आपके लिए क्या रहा है? इस समय में जितनी एक्ट्रेसेस के बीच में गया, हाउ यू सी द डिफरेंस इन द एक्ट्रेसेस फॉर whom you sing? I do see one thing for sure, that every actress, every actor is working way too hard, and they've been working hard for all their lives, and आप उनकी मेहनत देख सकते हैं स्क्रीन पर। बहुत आसान है हमारे लिए कहना कि ये अच्छा था, ये अच्छा नहीं था, ऑफ कोर्स ये हमारा काम है, ऑडियंस का भी वही काम है, उनको जो पसंद आएगा वो देखेंगे, जो नहीं आएगा नहीं, लेकिन मेहनत तहे दिल से सब लोग करते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट, and I pray to God that they have the strength to keep working hard, because even I work hard and I know how difficult it is. Deepika going to Hollywood, Priyanka being presenting an award at Oscars. Yes, I read about it today. Yeah, so How you feel? उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया, और हम चाहते हैं आप ग्रैमी में अवार्ड लें और प्रेजेंट भी करें। वाओ, आप चाहते हैं अगर सीरियसली तो ज़रूर होगा, क्योंकि आप सब उनका प्यार ही है जो, और दुआएं हैं जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बात होती है ब्लेसिंग्स में, और उस डायरेक्शन में मैं काम तो कर ही रही हूँ, क्योंकि मुझे भी वो करना है। बात ये नहीं है कि वहाँ जाकर कुछ करना है, लेकिन एज एन आर्टिस्ट मैं पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके का काम करना है, दैट इंक्लूड्स US, दैट इंक्लूड्स UK, तो मेरी वो वहाँ पर उस डायरेक्शन में काम चल ही रहा है, तो जब वो होगा तो आप जरूर सुनेंगे। इतने सारे सिंगर्स हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि हमने कैरेक्टर के हिसाब से अपनी आवाज़ को चेंज किया, मॉडिफाइड किया, कैरेक्टर को समझा। आपका कोई ऐसा सिंगर जो आपको लगता हो कि वाकई वो अपनी आवाज़ को मॉडिफाइड करते हैं और उस हिसाब से गा पाते हैं?
मुझे एक्चुअली लोगों का नहीं मालूम, मैं अपनी बात करूं तो मैं सिर्फ जो जैसा अच्छा लगता है वैसे गाती हूँ, जैसा मुझे महसूस होता है उस वक्त गाना सुन के पढ़ के वैसे गाती हूँ। आवाज़ तो आप चेंज नहीं कर सकते, या नहीं तो आप मिमिक्री आर्टिस्ट होंगे अगर आप आवाज़ चेंज करते। गाने में गाने का मूड जो है उस हिसाब से आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, वो चेंज होती है, लेकिन आवाज़ Can I request you, like probably we will not be able to meet, might not be before Valentine's Day. Any love song which you like to dedicate to your fans? श्योर। इनफैक्ट मेरा हाल ही में गाना रिलीज हुआ है फिल्म के तौर से, तो वो सुना देती हूँ। Thank you so much. कोई अक्स हो बिसरा, कोई ख्वाब हो गहरा, मैं क्या हूँ बता दे तेरे लिए, यादों का चेहरा, कोई ख्वाब सुनहरा, मैं क्या हूँ बता दे तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। कि रिदम मूवी जैसे कि आ रही है, तो इसमें आपका सॉन्ग रिकॉर्ड करते वक्त कोई स्पेशल मोमेंट रहा है किसी गाने को लेकर? हर रिकॉर्डिंग मेरे लिए स्पेशल होती है, और क्योंकि ये नया गाना था, नए लिरिक्स थे, नए म्यूज़िक डायरेक्टर थे, सलमान थे, तो हम लोगों का जो कोलैबोरेशन था उसमें बहुत मज़े की, हमने बातें की, देश और दुनिया की बातें भी की और गाने की, हमने बहुत अच्छा खाना खाया, बहुत मज़े किए स्टूडियो में। इनफैक्ट इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस, आई ऑलवेज रिमेंबर इट। Thank you so much, Nidhi, and we wish you all the best. Hope to see you on Grammy, Oscars, and hope we also make it to the red carpet. Wish you all the best. Thank you. All the best. Thank you.